हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन दिस क्लास। टॉप 40 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके, सो पेपर वन हम डिस्कस करेंगे एंड पेपर टू नेक्स्ट डे में हम अपलोड कर देंगे। ओके, सो बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और क्लास एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है यहाँ पर कि जो दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन विच? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दैट इज CO3 एंड 2 चार्ज है, एंड ऑप्शन सी इज दैट इज HCO एंड O- चार्ज है। ओके, सो फ्रेंड्स, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो मिनिमम रहेंगे कहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू। Molecules are held together in a crystal by, that is option C is correct answer, van der Waal forces. ओके, सो द जो हमारा जो मालिक्यूल्स होता है वो हेल्ड होता है टुगेदर इन क्रिस्टल्स बाय van der Waal attractions. Now next questions. sp3d2 hybridization is present in dash एंड फाइंड इट्स ज्योमेट्री बोल रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बीएससी सिक्स सेमेस्टर के भी केस में आता है। स्टूडेंट लोगों ने कमेंट करके बताया था कि ये वाला भी क्वेश्चन फंस चुका है करके। आपके केस में भी ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये भी मैंने क्वेश्चन लिया है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन दैट इज हेक्सा निकेल हेक्सा दैट इज ओके हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 3+। ओके, फाइंड इट्स ज्योमेट्री बोल रहा है, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फ्रेंड्स। ओके, so this is a octahedral geometry because the number of that is 6 ligands is present here. Okay, how many ligands? 6 ligands are present here because the 6 is denoted by the hexa. That's why the number of oxidation state is equal to number of unvacant orbitals, and so the octahedral geometry in this complex. Okay, hexaamino cobalt 3+ ion. Now next question friends, question number 4. Find the molecule with the maximum dipole moments. Okay, so option B that is the NH3 ammonia should be the correct answer. Now next questions, question number 5, that is metal and यहाँ पर 6 लिगेंड दिया है MX6 is a molecule with octahedral geometry. How many XMX bonds are at 180? Okay, so friends, the answer is option number 3, that is 3. Okay, the 3 metal and ligand bonds are at 180 degree. Okay, now next questions. Find the pair with sp2 hybridization of the central molecules. So option C BF3 and NO2. Okay, so BF3 and NO2 is correct answer. Now next question friends, the formal the formal charge and PO bond order in PO4 3- respectively are, that is option B minus 0.75 and 1.25 is correct answer. Now next questions, which of the molecule does not have a permanent dipole moments? Okay, so option D that is CS2 carbon disulfide is correct answer. That does not have permanent dipole moments. Okay, sulfate ion, okay, sulfur dioxide ion and the hydrogen sulfide ion also the permanent dipole moment, but the copper disulfide does not have any permanent dipole moment. That's why option number D is correct answer. Okay, now question number 9. The p pi d pi bonding is present in which molecule? So the that is SO3 2-. Okay, molecule contain the p pi and d pi bonding. Okay, now next questions, which one
हैज़ अ पिरामिडल शेप। ओके, इनमें से किसका जो पिरामिडल शेप है? ओके, सो ऑप्शन बी PCl3, PCl3। ओके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो जो शेप है फ्रेंड्स वो कैसा है? पिरामिडल है। ओके, now next question friends, in SN1 the first steps involves the formation of, that is option C, carbocation. Okay, so carbocation is correct answer. In SN1 the first steps involves the formations of carbocation. Now next questions, the relative reactivities of acyl, जो acyl compounds हैं towards the nucleophilic substitutions or in the order of, so option number 3, that is acyl chloride is greater than acid anhydride, and acid anhydride is greater than ester, and ester is greater than amine. That sequence should be the correct answer. Okay, then next questions, toluene is more reactive than benzene towards the equilibric reagent due to the inductive effect, hyperconjugative effect, and both inductive as well as hyperconjunctive effects. So friends, जो टूलिन्स का स्ट्रक्चर्स होता है उसमें बोथ, दैट इज वो इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी, ओके, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Then nitration of benzene is what? So the nitration of benzene is the electrophilic substitution. Okay, nitration of benzene is electrophilic substitution. Now next question, the next question is that with concentrated that is SBr hydrogen bromide ethyl phenyl ether yields, so phenyl and ethyl bromide. Okay, विथ जो कॉन्सेंट्रेटेड SBr होता है एंड इथाइल फिनाइल ईथर्स होता है वो ईड्स होता है, किसकी ईड होता है? तो होता है फिनाल एंड इथाइल ब्रोमाइड्स। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फिनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड इज करेक्ट आंसर। Then the next question is that reactions of sodium ethoxide and ethyl iodide will give with, that is ether, ethyl alcohol and acetyl. So reaction of sodium ethoxide and ethyl जो iodide होता है will give the ether. Okay, that's why option A is correct answer. The next question is that the most stable conformations of ethylene glycol is, that is option number B, Gauche should be the correct answer. Okay, so Gauche is correct answer. Then next question, which of the following compounds can show the geometrical isomerism? इसमें से कौन सा कंपाउंड से geometrical isomerism शो करता है? So friends, 2 पेंटीन्स ए भी geometrical isomerism शो करता है। ओके, 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन ए भी जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ओके, करता है ना? और हमारा 1,1,2 ट्राइक्रोमोप्रोपेन, ये जो है 1,1,2 बोल रहा है ना, तो ये बेटा ये नहीं करेगा। ओके सॉरी, ये जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और यहाँ पर जो 2-methyl-3 हेप्टेन ही है, ओके, 2-methyl-3 हेप्टेन ए भी जो है ए भी जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दैट्स वाई द पी क्यू एंड एस। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? पी क्यू एंड एस आर शो द जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, then next questions, choose the functional group which can act as functional isomerisms. ओके, सो इनमें से कौन सा ग्रुप है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स शो करेगा? सो फ्रेंड्स, इसमें में आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओके, जो कि अल्डिहाइड ग्रुप है, एंड आर सी डबल बॉन्ड ओ आर जो कि कीटोन ग्रुप है। ये दोनों हैं फंक्शनल ग्रुप्स विच कैन एक्ट एज अ फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, सो पी एंड आर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी एंड आर इज अ करेक्ट आंसर। ओके,
देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डायस्टेरियोमर्स होता है वो क्या होता है? सो वो जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है दैट इज क्या होता है? कमेंट करो जल्दी। ये होता है सिमिलर केमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, जो डायस्टेरियोमर्स होता है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है बेटा, वो सिमिलर होती है, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ओके, सो दैट इज डायस्टेरियोमर्स विल हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। देन which of the following reactions is used to increase the length of the carbon chains? Okay, so the answer is जो ऊर्ज रिएक्शंस होते हैं बेटा, ओके, ऊर्ज रिएक्शंस होती है उसमें हम सोडियम दैट इज इसका यूज़ करते हैं ना, ग्रिग्नॉट रीजन्स का। ओके, सो ग्रिग्नॉट रीजन RMGS का हम यूज़ करते हैं और जो कार्बन की चेन की लेंथ है उस चेन को लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं इन दी ऊर्ज रिएक्शन। ओके, देन देखो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अल्काइंस होता है वो कैसे होते हैं? जो अल्काइंस और द नॉन पोलर। ओके, नॉन पोलर इन नेचर, अल्काइंस आर नॉन पोलर इन नेचर एंड द फर्स्ट 4 members are colorless. Okay, so option B should be the correct answer. Then next simple question friends, which of the following is not a process of halogenations of alkenes? इनमें से ऐसे कौन सी प्रोसेस है वो हेलोजेनेशन प्रोसेस को शो नहीं करती है? ओके, सो ऑप्शन ये जो हमारा है दैट इज असाइलेशन रिएक्शंस। ओके, ये जो प्रोसेस है हेलोजेनेशंस के प्रोसेस को ओबे नहीं करती, और बाकी जो क्लोरीनेशन से, ब्रोमिनेशन से एंड आयोडिनेशन से, ऑल ऑफ दिस फॉलो द प्रोसेस ऑफ द हेलोजिनेशंस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो मीथेन होता है फ्रेंड्स हमारा। सो मीथेन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड वाई द रिडक्शंस ऑफ अल्किन्स। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू आंसर। ओके, एब्सोल्युटली ट्रू फ्रेंड्स। जो मीथेन्स होता है वो हम प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मीथेन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड वाई द रिडक्शंस ऑफ अल्किन और अल्काइंस। दिस इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साइक्लोअल्केन्स होता है फ्रेंड्स, जो साइक्लोअल्केन्स हैव the same melting point and boiling points. This statements either be true or false. Give me the answer. So option B, that is false. Okay, then identify the alicyclic hydrocarbon which is highly flammable. That is the friends जो highly that is flammable alicyclic जो हाइड्रोकार्बन्स होता है वो होता है दैट इज साइक्लोपेंटेन। ओके, तो साइक्लोपेंटेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अल्किन्स होते हैं फ्रेंड्स, जो अल्किन्स क्या होते हैं? अल्किन्स आर द दैट इज कार्बन एटम। ओके, वी नो वेरी वेल। अल्किन्स क्या होते हैं? अल्किन्स आर द कार्बन एटम्स विच आर कनेक्टेड ईच अदर बाय सिंगल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड और नॉन कनेक्टेड। So the option is double bonded. Option B is correct answer. Okay. Next questions. Which of the following reasons will form one propanol from propene? So the friends, option A, that is B2H6 and H2O2. Okay. Hydrogen bromides and hydrogen peroxide and hydroxide ion is correct answer. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स इज एग्जिबिटेड बाय। ओके, सो क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से एग्जिबिट्स कैसे होता है? दैट इज 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन नो, 2 ब्यूटेनॉल नो एंड ब्यूटेनॉल नो। सो द फ्रेंड्स ऑप्शन ए दैट 2 ब्यूटेन इज करेक्ट आंसर। ओके, then next question friends, which of the following hydrocarbon is formed when benzene react with 3 chlorine molecule under UV conditions? अगर जो 3 क्लोरीन मालिकूल्स अगर अंडर यूवी कंडीशन में बेंजीन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन मिलेगा? सो हमें क्या मिलेगा बेंजीन के साथ करते हैं तो हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलेगा बेटा। ओके, सो ऑप्शन बी बेंजीन हेक्साक्लोराइड शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स?
CHO, NH2, OCH3 and NHR. सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दैट इज CHO जो अल्डिहाइड ग्रुप्स होता है और जनरली मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर शो करेगा। ओके, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो लाइफ जिंगा डाला। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन C6H6। बेंजीन का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला C6H6 है फ्रेंड्स, इनको पता नहीं है नोट करके रखिएगा। ओके, सो जो इसमें जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 12 क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं एंड 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन से लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो 12 आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 आर पाई बॉन्ड्स। ओके, this one also important question friends, which of the following is used to reduce the phenol vapors to benzene। सो फ्रेंड्स जो फिनाइल वेपर्स उसको हम रिड्यूस करने के लिए हम जिंक डस्ट का यूज करते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, aromatic hydrocarbons are readily miscible in water and immiscibles with organic solvents। सो ये स्टेटमेंट कैसा है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है वो रेडिली मिसिबल बोल रहा है इन वाटर में एंड इमिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जो क्लैरिफिकेशंस हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल as like dissolve like। okay, hence the aromatic hydrocarbons are immiscible with water but they are readily miscible with organic solvents। okay, अगर ऐसा स्टेटमेंट रहा होता तो एब्सोल्युटली ट्रू होता, बट ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। फ्रेंड्स आपको आर्थो पैरा मेटा पोजिशन तो पता ही है ना। ओके, आर्थो मेटा एंड पैरा एंड और एक पोजीशन है, कौन सी है कमेंट करके बताना, इप्सो पोजीशन है। ओके, आर्थो मेटा पैरा एंड इप्सो पोजीशन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सो फ्रेंड जो यहाँ पर OCH3 ग्रुप्स होता है, सो दिस इज द आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्सिनोजिन। ऑप्शन ए 1-2 that is benzpyrene, option B ethyl alcohol, option C 3-methyl that is 3-methyl cholanthrin and option D 1-2 benzanthracene। okay, so option B friends, ethyl alcohol is not an example of carcinogen because the 1-2 benzpyrene this is example of carcinogen। option C that is 3-methyl cholan that is cholanthrin is an example of carcinogen and 1-2 benzene thracene this is also the example of carcinogen, but जो ethyl alcohol है, ethyl alcohol is not an example of carcinogen, that's why option number B is correct answer। so friends आप लोगों की एग्जाम में ओके सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों की एग्जाम में बहुत ही सीरियस होकर नोट्स प्रॉपर पढ़िएगा। ओके, और MCQ देने के लिए मॉक टेस्ट रीड करने के लिए हमारे इस चैनल पे ज़रूर आएगा। ओके, क्योंकि आपके जो परसेंटेज है वो एक बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं, दैट्स वाई आई सजेस्ट टू यू प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप एक जो स्टडी है कीजिए। अपने टीचर स्टाफ से भी पूछिए कि सर कैसे स्टडी करनी चाहिए करके। ओके, और आप वैसे ही स्टडी कीजिएगा क्योंकि सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम पे ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड है। ओके, दैट्स वाई मैं सजेस्ट यही करूँगा आपसे। जय हिंद फ्रेंड्स, जय महाराष्ट्र।